Our next resource person is already there, and I would request Vikhroli Court Bar Association office bearers to come on the stage. Advocate Puneet Chaturvedi sir to come on the dais, please. I request the Honorable President and the other office bearers of Vikhroli Court Bar Association to felicitate Advocate Puneet Chaturvedi sir with a memento and floral bouquet. It is my honor to introduce our next resource person, Advocate Shri Puneet Chaturvedi sir. Sir belongs to a family of lawyers for 4 generations and has associate law offices throughout India. He has been practicing as an arguing counsel for the last 34 years and has appeared before the Honorable Apex Court as well as the various high courts across India, besides practicing in our parent Bombay High Court. He has taught law in University of Mumbai and LLB in Government Law College, Churchgate. He has been regularly invited by various other law colleges. He writes articles and columns in magazines and websites. His articles and speeches are widely hailed. His law book on media laws has been recently released, and another one on medical laws is in process. He has been addressing the annual law training and lecture series by the Bar Council of Maharashtra and Goa, besides other forums. He addresses and enlightens various institutions and corporate houses. To add to his feather, he has conducted Vedantic workshop in schools, colleges, management institutions, corporate houses, chambers of commerce, jails, clubs, courts, etc. Today, he has consented to be with us and share his knowledge on the topic of gender-neutral offences, mob lynching, organized crimes, including economic offences and petty organized crimes and terrorist activities. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, except arrest, remand and bail. I request sir to come forward and share his inputs. Honorable dignitaries on the dais, my fellow lawyers of Kurla, Mulund and Vikhroli Bar Associations. I was just sitting here and I came to know Honorable Judge from Akola is with us all the way from Akola. Please give him a big round of applause. This is indeed a pleasure that somebody from Akola has traveled to address all of us. And this is also a success of the organizers of this Advocates Development Forum. When I stand here and see the gathering, it is unbelievable. I really feel कि Advocates Lawyers Forum ने कुछ तो कमाल किया है. इतने सारे एडवोकेट्स इकट्ठे कर लिए. इतने सारे इकट्ठे और वो भी जानने के लिए कानून. हम एडवोकेट्स तो सिर्फ कानून सिखाते हैं कोर्ट में, जानना नहीं चाहते. जज साहब बैठे हैं, बताएंगे अपना अनुभव. हम तो जजों को पढ़ाते हैं और बाहर निकलकर अगर फैसला हमारे फेवर में हुआ तो अपनी शान दिखाते हैं.
और विरोध में हुआ तो जज साहब की गलती। ये हमारा ट्रेट है, हम लॉयर्स हैं। पाटिल साहब जज बनने से पहले प्रैक्टिस की होगी तो अनुभव होगा। हम जजों को बाहर निकलते ही दो ही बातें बोलते हैं। अगर हमारे विरोध में फैसला आया, बेवकूफ है, और अगर किसी ने कहा नहीं नहीं बेवकूफ नहीं, इंटेलिजेंट है, तो मुझे लगता बेईमान है। यही हमारा जजमेंट है। बिकॉज हम और कुछ तो जजमेंट कर नहीं सकते, हम तो लॉयर्स हैं, जजमेंट तो जज साहब करेंगे। पर जज साहब के बारे में हमारा जजमेंट यही दो होता है। पाटिल साहब, एम आई राइट? यू मे नॉट हैव हर्ड इट। थोड़ा डायस से उतर के गैलरीज में घूमेंगे तो यही सुनने को मिलेगा। अब आज का जो ये विषय है, 1 जुलाई 2024 से क्रिमिनल लॉज में बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है। 8 दिन बचे हैं। 22 जून को हम मिले हैं। 1 जुलाई से ये तीनों कानून नए आ जाएंगे। इसमें से इंडियन पीनल कोड इज 1860, यानी ऑलमोस्ट 250 साल पुराना। इंडियन एविडेंस एक्ट इज 1872 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज 1973। अब ये बनने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय न्याय संहिता इज गोइंग टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड 1860। नाउ टू जस्ट मेक थिंग्स proper in perspective for you, that this Indian Penal Code was actually commissioned by the British Parliament when British were not even ruling India. ये 1834 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तब ये कमीशन किया गया और इसके चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने लॉर्ड मैकॉले। और ये एनफोर्स हुआ जब क्वीन का रूल हो गया। 1857 में हमारा ये विद्रोह हुआ और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के राज क्वीन ने ले लिया और 1860 में लॉर्ड मैकॉले के इस क्रिमिनल लॉ को अप्लाई कर दिया। तो ये जो आईपीसी 1860 आप जानते हैं, that was actually promulgated on 6th October 1860 but made enforceable on 1st May 1861. 1st May 1861 से चला आ रहा कानून 1st जुलाई 2024 में बदल जाएगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं बदल जाएगा, बाकी भी सारे स्पीकर्स बता चुके हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट समझिए। 250 साल में कम से कम हमारी 7 पीढ़ियां, 7 जनरेशंस चेंज हो गई। अब अगर छोटा सा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए तो आप में से कितनों को अपनी 7 पीढ़ियां याद भी हैं? आज की जनरेशन तो फादर की रिस्पेक्ट कर ले तो बहुत है, ग्रैंडफादर तक तो छोड़ ही दो, और फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का तो ना फोटो होती है घर पे, क्योंकि लोग बोलते हैं हु इज दिस ओल्ड मैन, रिमूव द फोटोग्राफ, न्यू फोटोग्राफ वेलकम। तो 7 पीढ़ियां तो हमें याद भी नहीं है।
पर ये 7 जनरेशन से पाटिल साहब ये कानून हमारे सिस्टम में है, और ये सिस्टम में ऐसे है कि हम बहुत से क्राइम्स को तो नंबर से ही बुलाते हैं। जैसे हमें बोलना हो बड़ा फ्रॉड आदमी है तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ देखो, सबको पता है, वकील साहब हैं आखिर। अभी वकील साहब ध्यान दीजिए, 1 जुलाई से भारत के सारे 420 खत्म। अभी कोई 420 नहीं रहेगा, अभी कुछ 420 ही खत्म, आईपीसी गया। ये है ना हमारे सिस्टम में रचा बसा। तो कितना मेजर चेंज होने वाला है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। और we being in the practice of law for 123 years, I'm a 4th generation of a lawyer, 34 years I'm practicing. तो इंटर्न्स हमारे ऑफिस में रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। अब तो मैं इंटरव्यू पैनल में नहीं बैठता हूँ, मेरे ऑफिस के लोग बैठते हैं। पहले जब मैं बैठता था तो एक छोटा सा मुझे किस्सा याद है। एक इंटर्न आया, उसने कहा कि सर मैं टॉपर हूँ, मैंने एलएलबी में टॉप किया है। और उसके हाव भाव में एक गर्व की फीलिंग थी। तो मुझे लगा ये अभी स्कूल बॉय सिंड्रोम से बाहर नहीं आया, ये लॉ है। यहाँ के टॉपर जो है ना, क्लासरूम के टॉपर कोर्टरूम के फेलियर होते हैं। Because we lawyers know that the law is not learnt in classrooms. Law is learnt in courtrooms. इसलिए when I came into practice, my father ने मुझे मुंशी जी बनाया पहले, और असिस्टेंट क्लर्क बनाया कि पहले सीखो, क्लासरूम में कुछ नहीं सीखोगे। तो वो टॉपर साहब को मैंने कहा कि तुम एक काम करो बेटा, you go to a particular lockup and there is a person who's arrested, go and interview and find out कि उसके ऊपर क्या क्राइम है, कौन से सेक्शन, कौन से चार्ज लगा हुआ है। ओके सर। This topper went with his notebook and pen to the lockup और बड़ा परेशान होके लौटा। मैंने कहा क्या हुआ? सर वो पता नहीं चल पाया क्या क्राइम है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अब वो जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बेसिकली अरेस्टेड था चोरी के इल्जाम में, पर जब ये इंटरव्यू करने गया तो यही सोच के गया कि वो बताएगा सर मेरे ऊपर झूठा चोरी का लगाया है, मेरे को ये किया है, मेरे को वो किया। वो बोल रहा है सर 379 लगाया मेरे ऊपर। अब ये समझ ही नहीं पा रहा क्या है ये 379। इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि 379 तो मैंने 3-4 लॉ में से कौन सा वाला, आईपीसी का कि सीआरपीसी का कि और कुछ कंपनी लॉ का, क्योंकि 400-500 सेक्शन वाले कई स्टैट्यूट हैं। तो ये 379 लिख के आया और परेशान है, बोल रहा सर मालूम नहीं पड़ रहा है, वो चोर तो कुछ नंबर बता रहा है। तो मैंने बोला बेटा, इसीलिए बोला वो चोर प्रैक्टिकल कर रहा है, तुम सिर्फ क्लास में थ्योरी पढ़ के आए। तो हम लॉयर्स रोज प्रैक्टिकल करने वालों से जूझ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये क्लासरूम में क्या होने वाला है? और ये जो भारतीय न्याय संहिता अब आ गई आईपीसी को रिप्लेस करने, इसकी खूबी ये है कि धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट को, जिन्होंने मुझे लगता है कि ऐसे प्रैक्टिकल लोगों के इनपुट लेके ये बनाया है। हाँ, मैं आपको प्रमाण करूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए, वी ऑल नो आईपीसी 511 सेक्शन है,
23 चैप्टर है। पर एक्चुअली ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो भी 511 सेक्शन 23 चैप्टर बने होंगे ये 1860 में बने होंगे, पर 2024 आते आते एक्चुअली गिनेंगे तो 26 चैप्टर हो गए। एडिशंस हुए ना अमेंडमेंट कर करके, और थोड़े मोड़े नहीं, 63 सेक्शंस आर मोर एडेड। ABCD कर करके हमने उसमें तो टोटल मिला के अगर आप गिनेंगे तो आईपीसी में अभी 8 दिन तो टैक्सिंग है आपके लिए, वो 8 दिन में आप गिनेंगे तो एक्चुअली 574 सेक्शंस होते हैं एंड 26 चैप्टर्स। अब 504 मतलब 650 सेक्शंस हो गए, और जब अमेंडमेंट्स हुए होंगे, जब भी एडिशन हुए होंगे, तो मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे देश की वो ही सब इसमें इनकॉर्पोरेट कर देती है और पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंटेरियंस पास कर देते हैं। वो जो अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए, मुझे नहीं लगता कि किसी लॉयर्स को कंसल्ट करके वो इनकॉर्पोरेट हुए, इसलिए आप देखेंगे कि बड़ा रैंडम एडिशंस हैं, कहीं भी कुछ भी जोड़ दिया है। वो सब अब भारतीय न्याय संहिता में स्ट्रीमलाइन हो गया है, और सारे वकील साहब लोगों के लिए सुकून की बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता के 650 सेक्शंस याद करने की जगह अब आपको 216 सेक्शन कम याद करने पड़ेंगे। क्लैप फॉर पार्लियामेंट। वकीलों की कितनी सुविधा, याद कर करके कई बार तो पन्ने ही पलटते थे हम लोग कोर्ट में, कौन सा कहां गया ये सेक्शन, ढूंढ रहे हैं। 216 सेक्शंस कम हो गए, 358 बचे 574 से, और 7 चैप्टर्स कम हो गए। 26 चैप्टर्स जो आईपीसी में थे उसमें कहने को टेक्निकली 20 चैप्टर्स हैं, पर एक्चुअली वो 19 ही चैप्टर्स हैं। 20th चैप्टर में एक ही सेक्शन है, दैट इज ऑफ रिपीलिंग एंड सेविंग एंड ऑल। 358 जो आईपीसी में नहीं था, तो आप कह सकते हैं इट्स एन एडिशन। आईपीसी में इसलिए नहीं था क्योंकि आईपीसी में क्या रिपील करते, पहले ही बार तो आया था, रिपील करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब रिपील करने के लिए है, तो भारतीय न्याय संहिता का जो आखिरी सेक्शन है 358, लास्ट चैप्टर है 20th चैप्टर, इज ओनली वन सेक्शन, दैट इज 358, रिपील एंड सेविंग। तो रिपील मतलब आईपीसी रिपील हो गया, और सेविंग क्या है कि जो प्रेजेंट मैटर्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो अभी जो थोड़ी सी खुशी आपको दी थी ना मैंने कि 216 सेक्शन का, अभी जरा झटका देता हूं। प्रॉब्लम ये है कि अभी 10-20 साल तो ये आईपीसी सीआरपीसी चलेगा ही, तो हमारी जनरेशन को 516 प्लस 358 याद रखना है। पाटिल साहब, 516 प्लस 358, 511 मतलब 574 प्लस, यानी हमें तो 1000 सेक्शन, और आने वाली जनरेशन्स को सिर्फ 358। बहुत नाइंसाफी है, पर क्या करेंगे, हमारी जनरेशन ही ऐसी है। मैं तो सचमुच बोलता हूं, मेरी जनरेशन ऐसी है कि जब हम छोटे थे तो माँ बाप की डांट खाते थे, ब्याह हुआ तो पत्नी की खाता हूं, और आने वाले भी तो बच्चे भी, दे से दैट यू डोंट नो एनीथिंग। सो आवर जनरेशन इज एक्चुअली, हम लोग सफरर्स हैं। मतलब 574 आईपीसी के सेक्शंस, 358 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन, सब हमें ही रटने हैं, और जब तक हमारी जनरेशन खत्म होगी इट विल बी ओनली भारतीय न्याय संहिता।
मुंबई में भी अभी आप ट्रैवल करिए, कितना कठिन है, ट्रैफिक हर जगह है, सब जगह मेट्रो रेल का खुदाई है, ये है वो है, और हर जगह लिखा है आपके भविष्य के लिए वर्तमान की तकलीफ झेल लो। अरे मेरा भविष्य नहीं बचेगा भैया जब तक ये सब कंप्लीट होगा। मैं तो कई बार सोचता हूं इतना खोद रहे, क्या खुदा मिल रहा है इनको, भगवान जाने क्या हो रहा है। लेकिन ये हमारी जनरेशन की तकलीफ है। तो क्या क्या चेंज हुए हैं? डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो जो ये 26 में से 19 चैप्टर हो गए, उसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे वो इनकॉर्पोरेट होके ओनली 1 हो गया प्रिलिमिनरी, और जो सेक्शन 1 to 52A तक जा रहा था दैट हैज कम ऑन टू सेक्शन 1 to 3, दैट्स इट। So 52A sections are comprised to only 3. One is short title, extent and commencement. उसका एक मेजर चीज याद रखनी है कि जो चेंज हुआ शॉर्ट टाइटल में, जो एप्लीकेशन वर्ड है, एक्सटेंट वर्ड आपने सुना होगा, हर स्टैट्यूट में होता है। एक्सटेंट 2 तरह का होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है और एक जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सो नाउ that territorial jurisdiction which every statute used to have with an exception of state of Jammu and Kashmir is now removed. So now this Bharatiya Nyaya Sanhita will be applicable throughout India. Yeah, please, good. So with the removal of Article 370, now it is across India. Now Section 8 to 52A were the separate sections for definitions. So now it is all under Section 2. अब Section 2 में A, B, C, D, E, F करके उन्होंने उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ला दिया, लेकिन 5 डेफिनेशंस ऐड हो गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। एक्चुअली आई हैड रिक्वेस्टेड द ऑर्गेनाइजर्स कि अगर यहाँ कुछ स्केच बोर्ड वगैरह होता तो आई वुड हैव ड्रॉन इट फॉर यू, बट एनीवे नो प्रॉब्लम। 5 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो हम सबसे पहले बात समझिए। फर्स्ट इज 2A, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दैट इज सेक्शन 2A ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। We all understand what is audio visual electronic. So now this is incorporated, this is defined. And section 2I, after A I am directly taking you to 2I, that is electronic communication. This is also defined. Section 2A is audio visual electronic means, and section 2I is इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम सब हैबिचुअली आजकल व्हाट्सएप मैसेज आया नहीं कि फॉरवर्ड करते हैं। थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा तो लगता है हमारे दोस्तों को भी पता चलना चाहिए, रिलेटिव्स को भी, फैमिली मेंबर्स को भी। थोड़ा भी कुछ सेंसेशनल है तो भी हम फॉरवर्ड करते हैं। ये बड़ा कॉमन है, पर अब सावधान होने का समय है। Because this electronic communications etc. is now defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, or electronic communications include your WhatsApp, your Instagram, your email, your all kinds of electronic communication. और उसमें अगर स्लाइटली भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल मिला मटेरियल, तो नाउ not only the creator of that communication but forwarder of that communication will also be liable. So beware. बड़ी सावधानी से फॉरवर्ड कीजिए। It's important to understand. इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इंक्लूड की गई हैं जो आईपीसी में नहीं थी,
सीआरपीसी में भी नहीं थी, एविडेंस एक्ट में भी नहीं थी, लेकिन हम सब वकीलों के चूल्हे उसी से जल रहे थे। हम सब वकील साहब की असली कमाई जिन चीजों से हो रही थी वो डिफाइन ही नहीं था कहीं, एंड दैट वाज बेल। बेल आई मतलब ठीक है चलो कुछ तो आज ग्रांट हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो और अच्छा है, फिर अगले ऊपर जाएंगे। और ये देखो जो सबसे ज्यादा हमारी इनकम करा रहा वो डिफाइंड ही नहीं था। कई लोग पूछते थे सर ये बेल क्या है? ज्यादा बात मत करो तुम, एक तो वैसे ही क्राइम करके आए हो, तुम्हें छुड़ा रहे हैं, ऊपर से डेफिनेशन पूछ रहे हो, बोलो मत। हम अपना ऑरा दिखाते थे। अब ऑरा नहीं दिखाएंगे, उसको भारतीय न्याय संहिता दिखाएंगे, ये लो देख लो, ज्यादा बात मत करो, लाओ कितने दे रहे हो? 3 definitions, 2B, 2D and 2E. Very important definitions have been added. B defines bail, D defines bail bond, and E defines bond. Bail, bail bond and bond, all 3 are now incorporated in definitions. अब आप जानते हैं क्या बेल है, क्या बॉन्ड है और क्या बेल बॉन्ड है। सो नाउ दिस क्लैरिटी हैज बीन ब्रॉट। इसके अलावा सेक्शन 4 सब क्लॉज F इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पहले आईपीसी में सेक्शन 53 के आसपास कहीं आता था। दैट वाज पनिशमेंट। हमारे भारत में 5 तरह के ही पनिशमेंट थे आईपीसी के अंदर। फर्स्ट वाज डेथ पेनल्टी, सेकेंड वाज लाइफ इंप्रिजनमेंट, थर्ड वाज इंप्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टर्म, रिगरस और सिंपल इंप्रिजनमेंट, फोर्थ वाज फॉरफीचर एंड फिफ्थ वाज फाइन। ये 5 ही पनिशमेंट्स थे आईपीसी में। नाउ सेक्शन 4F which defines punishments have added section 4F, 6th punishment, that is community service। पर यहां मैं आपको 1 सेकेंड के लिए रोक रहा हूं कि ये कम्युनिटी सर्विस तो जोड़ दिया। सर सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिटी सर्विस के डिफाइन उसमें तो आ गया पनिशमेंट में, सेक्शन 4F। लेकिन मजे की बात यह है कि सेक्शन 4F कम्युनिटी सर्विस इज नोवेयर डिफाइंड। अब हम तो अपीयर होने वाले हैं और पाटिल साहब के सामने जाकर बोलना सर इसको कम्युनिटी सर्विस दे दो। बाकी सरदर्द पाटिल साहब का कि डिसाइड करो क्या होता है कम्युनिटी सर्विस, हमें नहीं पता, बिकॉज आईपीसी डज नॉट डिफाइन। तो अब तो जजेस की प्रॉब्लम है, व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस, यू डिसाइड। The parliament has not taken a botheration to decide it. It is left to judicial officers to decide what is community service. If the judge decides that my own backyard of a garden is community, वो कहेगा पीछे जाके घास काटो, मेरे बगले के पीछे घास बढ़ गई है, जाके, इट्स अ कम्युनिटी सर्विस। I'm sorry? हाँ, बिकॉज किधर भी डिफाइंड नहीं है। हमारा पार्लियामेंट देखो कितना समझदार है, जजेस के ऊपर छोड़ रहा है। देखो तुम्हें क्या लगता है। सो नाउ इट कैन बी एनीथिंग फॉर कम्युनिटी सर्विस। एंड आई जस्ट वॉज हियर fortunately sitting with my previous speaker giving all these great details, what is community service and where it can be granted and all। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अच्छा ये सारे क्राइम में कम्युनिटी सर्विस मिलने वाली, पर क्या मिलने वाली वो तो नहीं मालूम। What is the community service? So now probably we will actually have to fall back upon some Hollywood films, because this concept has been borrowed from
US, Europe, etc., which we have brought it over here, but we have forgotten to define it. कम्युनिटी सर्विस के बाद देखिए ये जो आईपीसी हैड first 6 chapters, 1 to 5A. 5A was added as conspiracy and the punishment for conspiracy, having 2 sections only, 120 and 120B, 120A and B. Prior to that was abetment and all. So chapter 1, 2, 3, 4, 5 and 5A ended with 120B. Now all this has been comprised. हमारा जो जनरल एक्सप्लेनेशंस वाला पूरा चैप्टर था वो डेफिनेशन सेक्शन 2 में आ गया, 2 और 3. फिर जो पनिशमेंट वाले थे वो एज इट इज हैं, जिसमें मैंने कम्युनिटी सर्विस आपको बता दिया. पनिशमेंट के बाद जनरल एक्सेप्शंस हैं. जनरल एक्सेप्शन वाज डिवाइडेड इनटू 2, दैट वेयर द पनिशमेंट विल नॉट बी अवॉर्डेड एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो हमारा आईपीसी में जाता था, वो भी एज इट इज एन ब्लॉक उठा के हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है. जो 3 अलग अलग चैप्टर्स थे, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और एंड में जाके था 511 अटेम्प्ट, ये तीनों कंप्राइज हो गए अभी चैप्टर 4 में. सो नाउ चैप्टर 4 हैज abetment, conspiracy and attempt. All have been brought under chapter 4. तो यानी जो 1 to 5A तक था वो सब 4 में ओवर हो गया. चैप्टर 5 और चैप्टर 6, thereafter chapter 17 as a lawyer's market. भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 5, चैप्टर 6, thereafter straight away चैप्टर 17, वो ही आपके घर का चूल्हा जलाएगा. बाकी सब तो 358 सेक्शंस हैं, मगर यही काम आएंगे. मैं बता रहा हूं क्यों. बिकॉज what was chapter 16, offenses against human body, and chapter 17 was offenses against property. जो ह्यूमन बॉडी का चैप्टर था उसको बाइफर्केट कर दिया है. नाउ इट हैज बिकम चैप्टर 5 and 6. How it is bifurcated? ह्यूमन बॉडी का जब हम आईपीसी का देखते थे तो एट दैट टाइम वी रिमेंबर दैट इट हैड from culpable homicide not amounting to murder to everything was there, and then it also included rape, it also included outraging the modesty of women, then sexual harassment, now everything was there. Now the human body offenses are divided into 2 parts. One, offenses against human body of weaker section, like women and children. They're segregated. Now, provisions relating to women were scattered in IPC. Scattered in a sense, some of the portions were in offenses against human body, then some of the portions were against that offenses in marriage, then offenses in miscarriage, outraging the modesty of women. These were scattered. Now, these are all comprised in chapter 5. So, chapter 5 further has 5 classifications: 4 against women and 1 against children. It's a beautifully classified. That's the reason I'm just trying to give you an understanding that now offenses against human body of a woman have 4 categories.
You can make a note. First, what was beginning from section 375, 376, 376 A, B, C, D, A, B, D, E, all that, जब जिसको जो याद आया जोड़ता गया, अभी वो सब स्ट्रीमलाइन हो गया. Now it is beginning from 63 onwards. Section 63 to 73. 11 sections on the first classification of offenses against women, that is rape. 11 sections dedicated to rape. Now, in IPC, original was only 375, 376 and 377. 377 is gone, deleted. 376 A, B, C, D, E, F, all that is now streamlined, became 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, up to 73. So 63 to 73 is rape. All kinds of rape. Where in between one section is added, and that is section 69. 63 to 73 के बीच में आता है सेक्शन 69, जो ओरिजिनल में नहीं था, एंड दैट इज सेक्सुअल रिलेशन थ्रू डिसीटफुल मीन्स. सो दिस इज इन बिटवीन दिस 63 टू 73. तो 69 आप याद रखेंगे, डिसीटफुल मीन्स, धोखा देके अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाया जा रहा है, तो दिस इज सेक्शन 69. सो इंपॉर्टेंट चेंज फ्रॉम ABCD and all, because we all know that by ABCDE, gang rape, by rape by authority, rape by hospital person, this by the, all was there. This 69 is an addition which was not there. Thereafter, second category of offenses against women is assault. Assault on human body of women. तो जो सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, D और फिर एंड में 509, इंसल्टिंग अ वुमन, इंटिमिडेटिंग अ वुमन, वो सबको यहां एक साथ कंप्राइज किया है सेक्शन 74 ऑनवर्ड्स. यानी रेप हुआ 73 पे खत्म, 63 टू 73, 74 ऑनवर्ड्स असॉल्ट ऑन वुमेन. तो अब यहां पर वो जो ABCD था वो भी स्ट्रीमलाइन हो गया. सो नाउ outraging the modesty of the woman, then sexual harassment, then disrobing, then voyeurism, then stalking, ये सब 75, 76, 77, 78 ये सीक्वेंस में आ गया. और जो 509 था एकदम एंड में हमारे, इंटिमिडेटिंग एंड इंसल्ट टू अ वुमन, वो 80 हो गया. उसी सीरीज में सब असॉल्ट में आ गया. ठीक है ना. तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई अगेंस्ट वुमेन. थर्ड कैटेगरी में ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज जो एकदम एंड में थे FIR में, IPC में, दैट वाज 495 ऑनवर्ड्स अप टू 498A. ये जो था ना 498A वगैरह, वो सब यहां पर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज 81 ऑनवर्ड्स यहां पर आ गया. सो नाउ डाउरी डेथ, देन जितने एंटाइसिंग अ वुमन and then marrying with or making a relationship with a married woman, all this has been brought into one umbrella in chapter 5, third classification. So offenses against marriage is now including that 498A and all, it's all here. 80 onwards, because
Third category was 74 to 79. Fourth category is 80 onwards. And the fifth category is offenses of miscarriage. So miscarriage and all, whoever kind of causes miscarriage or tortures a woman to have miscarriage, that is the fourth category of offenses against women, chapter 5. और जो मैंने बताया कि women and children, तो fifth classification is only for children. That is from section 92 to 99. Or maybe 93 to 99. Yeah? उसमें भी एक एडिशन हुआ है सेक्शन 95. 93 to 99 में 95 is important addition which was not there in IPC, and that is टारगेट किलिंग. जो बच्चों को यूज कर रहे हैं आजकल लोग ऑफेंस क्रिएट करने के लिए या कुछ करने के लिए, वो हायरिंग अ चाइल्ड टू कमिट ऑफेंस, तो वो भी यहां पर 95 में ऐड हो गया है. एम आई गोइंग टू टेक्निकल? आप बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज. अच्छा अभी ये देखो, ये हमको वकील साहब मान नहीं रहे, कपिल शर्मा समझ रहे हैं हमको. ये कह रहे हैं साहब आप लॉ वो बाद में बताना, थोड़ा जोक वोक सुनाओ. कमाल है. पाटिल साहब दिन भर आर्गुमेंट सुन के बोर होते हैं कि हम भी वहां भी जोक वोक सुनाए. ये हमारा बार है. कह रहा जोक सुनाओ थोड़ा सा. अच्छा अरे बाप रे, कहां से पढ़े सर कि क्लासरूम में जोक्स ही चलते थे. Now chapter 6, as I said, chapter 5, chapter 6 and chapter 17 is very important. 6 is offenses against human body. तो जो अब यहां पर 299 तक से शुरू होता था, culpable, homicide, not amounting to murder, now ये आ गया इधर chapter 6 में. What was beginning from section 299 300 has now become from 100. तो अब जो आप 302 करते थे ना, 1 जुलाई से भूल जाओ. अब बन गया पुलिस वाले को जो डायल नंबर है ना, वो याद रखना. कौन सा नंबर है पुलिस को डायल करने का? 100. तो मर्डर इज डायल 100. याद रखने के लिए आपको ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बता रहा हूं. So now you dial 100, that means section 100 का मैटर आया, यानी कई दिन चूल्हा जलेगा. कमाल का प्रोफेशन है हमारा. देखिए, वी आर नॉट बेटर देन डॉक्टर्स. डॉक्टर साहब मुस्कुराते तब है जब कोई बीमार पड़ा, वकील साहब मुस्कुराते तब है जब कुछ हुआ गड़बड़. क्राइम नहीं हो रहा तो बहुत बोरियत हो रही थी. ये कोविड में तो बहुत ही परेशान हो गए थे, कुछ क्राइम ही नहीं हो रहा था. तो ये कमाल का प्रोफेशन है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस 100 से शुरू हो रहे हैं, chapter 6. And why I said it is important for you to remember chapter 5 and 6, because major matters which are going to come to you as trial court lawyers are into these categories: offenses against women and children and offenses against human body. These are major areas of practice, because and third is 17, offenses against property. So we'll come to that 17 later. Now human body, here certain additions have been made. अभी तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आपको बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले, वो एक्सक्लूसिव नहीं था. तो
3 important sections have been added into this chapter 6. 111, 112 और 113. ये 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मेजर ऑफेंसेस का, 112 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे ऑफेंसेस का, पेटी ऑफेंसेस. तो 111-12 दोनों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पर 11 में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और बड़ी पनिशमेंट अप टू डेथ. 111 में आपको डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है, बिकॉज मेजर क्राइम है वो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. और 112 में पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जेब कतरे वगैरह जो होते हैं, पिक पॉकेट कर लिया, ये कर लिया, वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि कोई ना कोई उसमें सब ग्रुप होता है. एंड द third important addition is terrorist. That is 111, 112, 113. तो अभी टेररिज्म वगैरह नहीं था हमारे उसमें आईपीसी में, क्योंकि तब नहीं होगा. अभी दैट इज समथिंग विच इज वेरी प्रेवलेंट, सो इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू भारतीय न्याय संहिता. एंड ये जब आप, मैं बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब पढ़ेंगे ही, भारतीय न्याय संहिता की कॉपी खरीदेंगे, तो मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ही बता रहा हूँ कि ये सेक्शंस ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यही आपके ग्रॉसर बनने वाले हैं इन एडिशन. तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट. Why I am saying that these were important additions, because sometimes those who used to be part of the organized crime and terrorism, it was felt by us lawyers as well as by the courts that they were let free very easily because of not having stringent provisions and punishments, not defining these major crimes. So the need was felt to incorporate these crimes, to recognize that there is organized crime existing and terrorism is existing. And what I feel happy is that they have classified organized crimes into 2 categories: bigger organized crimes like human trafficking, drugs, bigger crimes, and petty organized crimes like pickpocketing, smaller thefts and all. But these are all organized crimes. So had it been only organized crimes, then this one important section would have been left. But fortunately, that's what I said कि जब ये भारतीय न्याय संहिता पढ़ी तो लगा कि इसमें लॉयर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. बताया उन्होंने कि सर इस तरह के भी होते हैं, इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, जो है नहीं आईपीसी में. नाउ these sections के अलावा 2 important sections और जो ह्यूमन ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में जोड़े गए हैं, वो है एक बड़ा, आपने 2-3 महीने पहले आंदोलन ट्रांसपोर्टर्स का सुना होगा. दैट इज सेक्शन 106 सब क्लॉज 2. सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 is against rash and negligent driving. एक 106 सब क्लॉज 2. अगर आपके पास भारतीय न्याय संहिता है तो आप देख सकते हैं. 106 सब क्लॉज 2 में पनिशमेंट बढ़ा के 10 years कर दिए, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन इज एडेड. रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बाद एक्सीडेंट स्पॉट से भाग जाते हैं तो प्रॉब्लम है. यानी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्राइड टू बी इनकलकेटेड
that after this accident, road accident by rash and negligent driving, you have to report the incident to the police immediately after this accident. तो आप सब क्लॉज 2 के लार्जर पनिशमेंट से बच गए। लेकिन अगर आप भाग गए तो फिर अगली बार गाड़ी नहीं चला पाएंगे। 10 साल में तो भूल जाएंगे ना, अंदर क्या है, नई गाड़ी आ जाएंगी, सब अलग अलग चीजें आ जाएंगी, तो क्या है। जो ये आंदोलन हुआ था तो वो फर्स्ट बिल में जो 106 आया था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, जो ये एक्ट में बदला है उसमें था कि विक्टिम आपके एक्सीडेंट का जो है उसे आप उठा के अस्पताल ले जाओ। अब वो हटा दिया। ये सब आंदोलन हुआ, ड्राइवर क्या सर हम अस्पताल ले जाएंगे क्या, नहीं सॉरी ये सब नहीं कर सकते, हम खुद ही भाग रहे हैं, हम कहाँ उसको उठाएंगे। यहाँ एक्सीडेंट तो तेज ड्राइव कर रहे थे तभी तो हुआ, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव फास्ट आउट ऑफ दैट इंसिडेंट। वो खूब आंदोलन हुआ, सरकार भी ने कहा अच्छा ठीक ठहरो कुछ करते हैं। तो अभी वो विक्टिम को तो पड़ा रहने दो वहीं, आप पुलिस स्टेशन चले जाओ और पुलिस वालों को जो उठा लो सर, उसको वो वहाँ पड़ा है उसको उठा लो और अस्पताल पहुँचा दो, क्योंकि हम जाएंगे तो हम भी अस्पताल चले जाएंगे। वो स्पॉट पे हमको कौन छोड़ने वाला है। कितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं हमारे देश की, आप समझिए। ये लॉ जो है ना, बनाने वाले वहां बैठ के कुछ भी बना रहे हैं। अरे भाई हमारी जनता को जानते नहीं आप। अच्छा पिक्यूलियर चीज है, मैं जब स्कूल में था साइकिल से स्कूल तब जमाने में साइकिल चलती थी, अब आप लोग पता नहीं देखा नहीं, हम लोग तो स्कूल जाते थे साइकिल से। तो एक तो बचपना था और साइकिल चलाने में जोश आता था। तो मैं एक बार साइकिल चलाते चलाते मुझे ये लगा कि मैं सड़क क्यों छोड़ूं। अब सामने से बस आ रही थी। उस जमाने में इतनी चौड़ी सड़कें तो होती नहीं थी जो अभी सब हाईवेज बन गए, वो छोटी छोटी सड़कें होती थी। और मुझे लगा मैं क्यों छोड़ूं, क्योंकि नीचे उतरूंगा तो गड्ढे पे जोर लगता था। तो मैंने सोचा मैं तो सड़क पे ही रहूंगा। और बस को तो जगह ही नहीं थी दाएं बाएं होने की, इतनी सी सड़क। तो हम जाके वो बस से, अब वो ड्राइवर ने जो कुछ कर सकता था बेचारे ने किया, बचाया, उठाया, हमको गिर गए थे। और मुझे लग रहा था गलती हो गई यार, मैं उतरना चाहिए था सड़क से नीचे, तो गड़बड़ हो गई। अच्छा गिल्टी फीलिंग आ रही थी मन में कि बहुत गलत हो गया यार। लेकिन हमारे देश की पब्लिक ने मेरी भावनाओं को तुरंत बदल दिया। उसने आके पब्लिक ने जो ड्राइवर की राइट लेफ्ट करनी शुरू की, तो मैं थोड़ी देर सोचा था अच्छा बस की ड्राइवर की गलती थी, नहीं। वो मेरा लॉ का पहला लेसन था, बिना लॉयर बने स्कूल में, कि बेटा गलती तो छोटी गाड़ी की होती नहीं, यहां तो गलती बड़ी गाड़ी की है। रेलगाड़ी एक्सेप्शन है। बाकी तो जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी गलती। साइकिल छूटी तो मोटरसाइकिल आई, लेकिन मोटरसाइकिल और साइकिल का झगड़ा होगा तो मोटरसाइकिल वाले की गलती। मोटरसाइकिल और कार का होगा तो कार वाले की गलती। कार और ट्रक का होगा तो ट्रक वाले की। यहां जितनी, ये हमारे देश की जनता है, आपको कभी गलती महसूस नहीं होने देती। आप तो छोटी गाड़ी उठाओ और जाके भिड़ जाओ, सड़क आपकी है। बड़ी गाड़ी वाला आया क्यों? अभी तो और एक नया नाटक शुरू हो गया है। सड़क पे अभी मेरे ड्राइवर को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है
कि भाई एंगर घर पे भूल के आना, कोई इरिटेशन नहीं, कोई एंगर नहीं। और ये जो बीच बीच में तुम बोलते हो देखो सर कैसे चला रहा है, ना तुम देखो वो कैसे चला रहा है, छोड़ दो, क्योंकि अभी एक नई ब्रीड आ गई है। नहीं नहीं, अभी जो वॉकर्स हैं, ये मुझे पता ही नहीं मुंबई में वॉकर सिग्नल क्यों लगे हैं। ये वॉकर सिग्नल भी हैं, लेकिन कौन मानता है? ग्रीन है, रेड है, वॉकर तो निकल रहा है, वो सबसे राजा है सड़क का। और आपकी गाड़ी से डैश हुआ नहीं, और डैश तो बहुत दूर की बात है, नहीं होगा, सिर्फ आपने हॉर्न बजा दिया अगर। क्योंकि अभी वो जो वॉकर्स हैं, वो लेटेस्ट वॉकर्स हैं, वो फोन पे बात करते निकलते हैं ऐसे करके। और अगर आपने हॉर्न बजा दिया, उनके फोन वार्ता को डिस्टर्ब कर दिया, मान लो यूएनओ की टॉक हो रही है पता नहीं क्या, और आपने हॉर्न बजा दिया वहां, तो वो ऐसे देखेगा। मतलब मैं अपने ड्राइंग रूम में घूम रहा हूं, तुम गाड़ी लेके आ गए यहां और ऊपर से हॉर्न बजा, क्या है ये? वो ऐसे करके देखता है। बाइक वाला आपकी गाड़ी के सामने से कट मारेगा और आपने हॉर्न बजाया तो फिर ऐसे देखेगा। यानी तुम कौन हो यार? अगर मैं आप में से जो ज्यादा लोग वॉकर और बाइक वाले हैं, तो आपके अगर भावनाओं को आहत कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये अपने देश के ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको भारतीय न्याय संहिता समझ रही है। उन्होंने कहा भाई यहाँ एक्सीडेंट करो, रुकना नहीं वहाँ स्पॉट पे, तुम उसको उठाने अस्पताल ले जाने के चक्कर में, भाई साहब वो तो गया, तुम भी जाओगे तुम निकलो। तो अभी 106(2) में ला दिया कि बस इतनी जिम्मेदारी करो कि पुलिस स्टेशन जाओ और उनको बताओ कि सर आप उठा के लाओ। हाँ, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी भी सुरक्षा चाहिए, मेरी गाड़ी की भी सुरक्षा चाहिए। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट एडिशंस। जो ये आपको पब्लिक मारती पीटती है, झगड़ा करती है, उसके ऊपर भी आईपीसी वो साइलेंट, बिकॉज शायद उस समय की पब्लिक उतनी जागरूक नहीं थी मारपीट करने के लिए। तो वो जो प्रोविजन है उसको आप ये समझिए कि जिसको हम कॉमनली मॉब लिंचिंग कह रहे हैं, वो एक्चुअली मॉब लिंचिंग वर्ड नहीं है कहीं भारतीय न्याय संहिता में। उसमें उन्होंने कहा है कि 5 से ज्यादा लोग, अगर कोई 2 चीजों में डिवाइडेड है, वो आपको ये स्कैटर्ड मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा 103 सब क्लॉज 2, सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 में आपको ये मिलेगा, और 117 सब क्लॉज 4 में मिलेगा, 117 सब क्लॉज 4। ये 2 जगह मॉब को कैसे बताया उन्होंने कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी का मर्डर कर देते हैं, killed somebody, that is 103 subclause 2. So killing by more than 5 people is a mob lynching. बट ये किलिंग तक नहीं रखा है इन्होंने। मान लो मरता नहीं है आदमी, लेकिन पब्लिक ने मारा तो सही, और वो हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट आ गया उसको, तो 117 सब क्लॉज 4 में भी मॉब को इनकॉर्पोरेट किया, दैट इफ मोर देन 5 पीपल हिट यू, बीट यू, एंड यू हैव सीरियस इंजरीज of a grievous hurt nature, then that is also mob lynching. So mob lynching is not limited to death only. Even hitting you, beating you, hurting you. I wish पार्लियामेंट ने मुझसे डिस्कस किया होता तो हम इमोशनल हर्ट भी जोड़ देते उसमें अभी सिर्फ ग्रीवियस हर्ट रखा है, क्योंकि कई बार हम लोग इमोशनली भी हर्ट हो जाते हैं। ये भी भारतीयों की एक विशेषता है, हम बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे ड्राइवर को तो मुझे रोकना पड़ता, क्योंकि वो सामने वाले ने कुछ ऐसे इशारा भी किया ना तो वो हर्ट हो जाता है, वो भी ऐसे ऐसे करता है। मतलब तुम क्या, हम है ना। ये इमोशनल हर्ट को अभी भारतीय न्याय संहिता ने जोड़ा नहीं है।
पर ये मैंने अपने ड्राइवर को बोला है कि बेटा इमोशनल हर्ट से बचना है ना तो ब्याह कर लो। पहले मैं भी बहुत इमोशनल हर्ट होता, अभी सवाल ही नहीं, अभी सिर्फ माई वाइफ गेट्स इमोशनल हर्ट, आई एम नॉट अलाउड। मुझे तो अलाउड ही नहीं है। और कमाल की बात है, हमारे देश के कानून में भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। हस्बैंड्स आर द मोस्ट पुअर फैक्टर्स। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फॉर वुमेन है क्या कोई? अभी कौन बताए कि मैं रोज पिट रहा हूं? किसके कोर्ट में जाऊं? पाटिल साहब के कोर्ट में जाके चलो तुम क्या कर रहे हो, हमारी भी कहानी वही है, चलो निकलो यहां से। सॉरी पाटिल साहब, मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो कहां सुनवाई है बताओ ना? घर पे तो है ही नहीं सुनवाई। वकील साहब की सुनवाई कोर्ट में भी नहीं है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, लॉयर हूं इसलिए आपको अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूं। सर, कितनी बढ़िया मूछें हैं आपकी, अच्छी लग रही है ना? ब्याह के पहले मेरी भी थी। पर इतना ब्रेव नहीं हूं मैं। ब्याह होते ही कानून पता था ना कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं भैया मूछ मरोड़ने का, मुड़वा लो, सफा चट मैदान। तो ब्याह के पहले की जो जिनको लॉ नहीं पता है ना, वही बहादुर हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत बचा हूं, यहां आके आपसे सब चर्चा कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि माई वाइफ डज नॉट नो लॉ। आई नो, सो आई, शी डज नॉट नो, सो आई एम सर्वाइविंग। वरना तो जिन वुमेन को अपने राइट्स भारत के कानून में पता है ना, सवाल ही नहीं, आप चूं भी कर दो, उनको सब पता है। यहां तक कि समटाइम्स इन आवर ऑफिस वी एनकाउंटर सम वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस वेयर आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। इतना मैं बोल रहा हूं, 123 साल की हेरिडिटी है लॉ की, 34 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, पर उसके बाद भी देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच आई डोंट नो व्हाट हाउ टू सॉल्व इट, एंड मोस्टली सच peculiar demands come from women. नो ऑफेंस मेंट यार, आप लोग बहुत सारी विमेन भी हैं यहाँ, पर फॉर्चुनेटली आई एम एबल टू स्पीक बिकॉज यू आर माई फेलो लॉयर्स. आई एम टॉकिंग ऑफ विमेन क्लाइंट्स. So one woman came to me with a gentleman. She sought appointment and she was sent to my cabin. And I said, yes, what's this problem? So she came with a gentleman who was very coy, shant sa baitha tha. And this lady was very aggressive and she said that, sir, मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है. सो आई सेड ओके, इसमें नया क्या मन में सोच रहा हूं मैं, पर बोल नहीं सकते आप. एज ए लॉयर यू हैव टू बी वेरी सॉम्बर. यू ऑल लॉयर्स, यंग लॉयर्स मस्ट रिमेंबर दिस, लॉ कैरीज अ लवली एक्टिंग ऑल्सो. आपको बहुत एकदम सॉम्बर, मन में हंसी आ रही, मगर I said, okay, अफेयर चल रहा है. सो शी सेड कि सर वो चुड़ैल को मुझे सजा दिलानी है. अभी मैं मन में सोच रहा हूं, लॉर्ड मैकेले को भी समझ में नहीं आया ये. इफ देयर इज एन अफेयर ऑफ अ हस्बैंड विद अनदर वुमन, मरेगा कौन? वाइफ आके कंप्लेंट कराएगी, मैं मुकदमा डालूंगा, मरेगा हस्बैंड ही.
बिकॉज मैकॉले साहब ने वो चुड़ैल के लिए कोई कानून बनाया ही नहीं. अभी आई एम फ्लैबरगास्ट. आई सेड, मैडम कौन चुड़ैल? वो जिससे मेरे हस्बैंड का अफेयर है उसको सर आप मेरे को मांगता है, उसको सजा दिलाओ. मैं बोला मैडम भूत प्रेत चुड़ैल किसके लिए कोई सजा नहीं है. आप आई जस्ट शोड माई इनएबिलिटी कि मैडम ये ऐसा कुछ क्या सर, आपको मैं सोच के आया आप बड़ा वकील है और आप ऐसा बात करता है. अभी बड़ा छोटा वकील करेगा क्या जो कानून में ही नहीं है. ये पेक्यूलियर प्रॉब्लम आती है. सो आई सेड ऑल राइट, वेयर इज योर हस्बैंड. मुझे लगा उसको बुला के काउंसलिंग करूंगा कि यार क्या कर रहे हो तुम. तो ये जो कॉय बैठा है बोल रहा है ये, इसको 2 थप्पड़ मारे इसने. बोलना. उसकी हालत देख के मुझे लगा ये अफेयर चला रहा है. मेरे मन में आया वो लेडी को बोलूं सर ये अफेयर नहीं बोलते, इसको काम गलत करने जाता होगा. ये पिट पिट के रोज कहीं जाता होगा. मुझे आज भी मार पड़ी, आज मुझे फिर से मार. अब इसका क्या सॉल्यूशन करोगे आप? मगर मैं आपको और एक चीज बताऊं, बिकॉज यू ऑल आर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स एडवोकेट्स, यू आर मोर इनोवेटिव देन अस. मैंने बोला मैडम ये कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता, आपके हस्बैंड ही अंदर चले जाएंगे. So she was very disappointed and she left and all that, and thereafter once again she sought an appointment. I said now what? She came only to inform me, सर जो आपने नहीं किया ना वो अपने छोटे वकील साहब ने किया है. ये छोटे वकील साहब लोग इतने चंट हैं. आ जाओ आ जाओ, कुछ ना कुछ करेंगे अपन. क्लाइंट आया छूटना नहीं चाहिए. अरे बाबा घर पे भी जाना है, हमारी भी चुड़ैल है. उसको कुछ दिन भर की क्रॉसिंग देनी है. क्लाइंट आया तो लौटा के जाएगा क्या? मैडम आप रुको रुको, अपन वो चुड़ैल को ठीक करते हैं. अबे दिस इज हैपनिंग इन द कोर्ट्स, वी ऑल नो. सो दैट इज हाउ these provisions which are now incorporated are actually in the sync of what is happening in the society, which was not there in IPC, or probably that nature of society. मैंने कहा ना 7 पीढ़ी पहले वो सब नहीं होगा जो आज हो रहा है, क्योंकि तब कहाँ अफेयर चल, मतलब लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे कहाँ सब. हाँ तो वो that was not the times at that time. So now these peculiar situations come. Now I have told you that these are additions into offenses against human body, that is chapter 6 for you. Then actually 6 से लेके सीधे हम 17 क्यों जा रहे हैं? Because 7 to 16, chapter 7 up to chapter 16, ये जो 10 chapters हैं इनको प्राइमेसी दी गई है भारतीय न्याय संहिता में. यानी सब टॉप प्रायोरिटी पे विमेन एंड चिल्ड्रन, चैप्टर 5. देन ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 6. देयर आफ्टर द प्राइमेसी इज गिवन टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट नेशन. सो चैप्टर 7 onwards you will find offenses against state, offenses against army, navy, air force. आपको याद होगा पहले चैप्टर 9A IPC में था offenses against elections. Now it is chapter 9. 7, 8, 9. Chapter 9 is offenses against elections. So now you have offenses against state, offenses against army, navy, air force, offenses against elections, then offenses against public servants, then offenses against false evidence and obstructing the public justice. इसमें भी एक चीज आई है
ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन 124A सेडिशन था, वो सेडिशन इज नाउ रिमूव्ड और वो 124A हैज बिकम 152, क्योंकि ये चैप्टर पीछे चला गया ना। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पहले था और ह्यूमन बॉडी बहुत बाद में था आईपीसी में, तो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में सेडिशन जो था 124A, दैट हैज कम इनटू 152, लेटर चला गया, एंड देन इट इज नाउ नॉट ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेडिशन वाज ऑफेंसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटाकर एंटी नेशनल, अगर आपकी एक्टिविटी एंटी नेशनल है तो 152। इफ यू आर चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, then it is 152. Earlier it was 124A during British time because they did not want Indians even to challenge the British rule. So that was one, sedition was against the government. Now it is against the nation. And ये जो बाकी चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइक ऑफेंसेस अगेंस्ट जो स्कैटर्ड थे वो कंप्राइज कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्लियर ऑफेंसेस अगेंस्ट काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, नोट्स, ये सब एक में ला दिया है, 4 चीज़ों को कंप्राइज कर दिया है। कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड स्टैम्प्स, ये चारों को एक ही चैप्टर में ला दिया है। सो ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन्स, करेंसी नोट्स, bank notes and stamps, all this is one chapter comprised, and this is how these chapters are up to chapter 16. So state के against जो offenses हैं, they have been given primacy over individuals property, and that is why offenses against individuals property is chapter 17, जहाँ पर आपके तमाम मिसचीफ वगैरह जो हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो सब पीछे चले गए हैं। थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, ट्रेसपास, ये सब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज अंडर चैप्टर 17। सो ऑल, अच्छा उसमें भी बहुत सारा प्रूनिंग कर दी गई है। वो जो पहले बहुत सारे ऐसे भलते भलते वर्ड थे, लर्किंग ट्रेसपास एंड लर्किंग ट्रेसपास सेट, मैं तो कई बार डिक्शनरी खोले लर्किंग क्या है, लेकिन वो सब लर्किंग वर्किंग हटा दिया। अभी एक आध जगह ही लर्किंग होगा, बाकी तो सो यू नीड नॉट टू ओपन द डिक्शनरी एवरी टाइम। ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग प्रून कर दिया है, थोड़ा सा उसको लिमिट में ला दिया है। बहुत सारी डेफिनेशंस जिसमें ब्रिटिश इंडिया, डेफिनेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ, वो सब हटा दिया। क्वीन वगैरह जो है वो सब रिमूव कर दिया, क्योंकि वो सब का कुछ बचा नहीं। मतलब अभी इंडिया की डेफिनेशन भी हटा दी, क्योंकि उन्होंने कहा हमें मालूम है क्या है इंडिया। ब्रिटिशर को बताने की ज़रूरत थी व्हाट इज़ इंडिया। टुडे वी नो व्हाट इज़ इंडिया, वी नो बेटर एक्चुअली। सो वो सब रिमूव कर दिया है। देन सेक्शन 304 is snatching, which was actually earlier dealt as theft by the police. Now snatching is separated from theft. So all those chain snatching and snatching from your hand some valuable, all that is a separate section 304. Earlier that was dealt under theft, because snatching was not separated. So now this is also a new addition. ये जो भारतीय न्याय संहिता में चेंजेस हुए हैं, और मैंने आपको उसका कंस्ट्रक्शन जो चेंज हुआ है वो भी बताया, सेक्शंस कितने 216 करीब कम हो गए वो बताया, ये डिज़ाइन चेंज हुआ, प्राइमेसी किसके ऊपर प्रायोरिटी है ऑफेंसेस में वो बताया है। पर मैं ये जानता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है, बिकॉज टिल टुडे these are
only dead letter words. They will be injected with life when the matters start coming into the courts of law under these provisions. So when you start operating these provisions, then they get life. At the moment, these are dead letter words, so how much would you read, how much would you understand? Till it is actually acted upon, argued in the court of law, interpreted every provision, then 8 दिन के वेट के बाद नया मुकदमा अगर आपके पास आता है तो भारतीय न्याय संहिता, पुराने वाले तो आईपीसी पे ही चलेंगे. So then these dead letter words will be injected with life. I have tried to make it as simple as possible for you, but I understand that this cannot be understood in one sitting or one charcha like this. So just for your knowledge, I am giving you a voluntary information which also you can note down. First of all, we have cultivated a research team over the years. Now around 70 plus people are working in that research team for us. And we are offering free of cost services to the lawyers across India. So, you can note down one email ID I am giving you. S for sugar, C for Chandigarh, again C for Chandigarh, SCC Advocates, ADVOCATES, advocates @gmail.com. Now, what you have to do is, you have to simply send a mail if you have any confusion, if you need any guidance, any assistance on any topic of law. You have to simply mail your problem. 48 hours, within 48 hours, you will get a response. It is made clear to our research team that if you are not responding in 48 hours, because we know that we all work under timelines, so we can't delay. So strict actions will be taken on these research team people because they are highly paid. And even if they need more time to research on it, but response will come seeking further time. Within 48 hours, your mail will be responded. And responded, I am telling you what assistance. Whatever your query is, it will be answered with substantive provisions of law, with sections and all that statute and all, with whatever the judgments on that point is there from Supreme Court or various high courts of India. Now, one step further, I must tell you that in case some citation is given to you in that answer to your query, apart from the statutory provision or rules or regulations or whatever, suppose if citation is given to you that this judgment is directly applicable to your query, and there are situations that you don't have that journal available. You got the citation, but you're not finding the journal. Probably, maybe your library doesn't have it. So if you remail it, we will provide you the entire judgment. And mind you, this is absolutely free of cost, a pure service to our fellow lawyers. Now, over and above this,
and I'm sorry, not only fellow lawyers, to the judiciary as well, in case if you want, and no advantage will be taken. Whoever sends a mail. Thus, over and above it, suppose if despite getting an answer onto your mail, if you are not satisfied, you want to personally discuss, you can call directly. I'm giving you the number 98210 10059. I'm repeating 98210 10059. This is my number, Puneet Chaturvedi, advocate. You can directly talk to me. If you have a query, if you have a question, if you say that yes, I had got the answer, but I'm still confused. This is again purely for the assistance, and no billing will be happening, no charges will be taken. This is purely our fraternity should come closer and we feel empowered. Whatever experience we have, we will share. If we don't have experience, we will tell you apology. हो सकता है कि कई बार मैं ही आपसे पूछ लूं कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या क्योंकि आप इनोवेटिव लोग हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो एडवोकेट्स हैं. तो these are the things. Now the third thing which I voluntarily wanted to declare, that as I said that in one such sittings we cannot complete all these understanding of law. So I have many such lectures across India. I'm invited and I've been delivering it, and they are all available on my YouTube channel. You have to simply search on the YouTube Puneet Chaturvedi Advocate, PUNEET CHATURVEDI Advocate, Puneet Chaturvedi Advocate. You search on YouTube, you will get many such speeches, not only on the Bharatiya Nyaya Sanhita, but also on several subjects including Constitution of India, Company Law, Contract Act, and several such matrimonial disputes and whatever. मुझे उम्मीद है, I hope that you have liked this, and this is what is Bharatiya Nyaya Sanhita for you. I feel that more such sessions will be organized and we will keep meeting. I really thank these organizers to have invited me, and I'm impressed that they have gathered such a wonderful gathering of Kurla, Mulund and Vikhroli Bar. Jai Hind. Thank you. I want to take a moment and express deep gratitude to Advocate Puneet Chaturvedi sir for having taken time in his busy schedule to share his insights and knowledge, and I must add, in a jovial manner, and which is valuable for all of us. Thank you, sir.